Alright, so now I'm going to share my screen जिससे मैं आपको portfolios जो भी हैं वो दिखाती हूँ. In the end, I will send you the links also. You can have a look at those portfolios and you can actually take inspirations from them. Alright. So I think should I start now, ma'am? Is it fine? Everyone is connected? Okay. Okay. So I'm sharing my screen right now. Please have a look at my screen. Okay. So something I will tell you कि जब आप पोर्टफोलियोज बनाते हो, आपको अपने पोर्टफोलियोज कहाँ कहाँ सेव करने हैं. कीप दैट इन माइंड कि आपको एक पोर्टफोलियो अपना ड्राइव में हमेशा सेव रखना है. बट कई बार होता है कि ड्राइव से भी वो डिलीट हो सकता है. सो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड Behance. Okay, you can save your portfolio there and people can actually look at your portfolio because आप एक अकाउंट बनाओ, add your designs there. ठीक है. Behance एक फ्री वेबसाइट है जहां पे आप अपने डिजाइन, इट इज जस्ट लाइक अ Pinterest or like Instagram. It's just like an Instagram or Pinterest for the designers who can add their portfolios or their work. आप जरूरी नहीं है कि आप अपना सिर्फ फैशन पोर्टफोलियो वहां पे अपलोड कर रहे हो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिजाइन और एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो, इफ यू हैव वर्कड ऑन अ थीम, ठीक है, आपने एक थीम पे वर्क करा, वेदर इट्स फॉर अ डिजाइनर और एनीवन, ठीक है, आप उस थीम को अपलोड कर सकते हो. एंड लेट मी जस्ट शो यू द फैशन पोर्टफोलियो. ठीक है. This is a fashion portfolio of a girl named Riya Lalwani. Okay, I found this on like Behance. ठीक है. अब इसमें आपको मैं साथ साथ ये चीज भी बताऊंगी कि अगर आप इस पोर्टफोलियो को मतलब जैसे कौन से साइज में, आप A3 साइज का पोर्टफोलियो लेंथ लेना. आप एक गूगल पे आप सर्च करो. ठीक है. A3 साइज जो साइज होता है पोर्टफोलियो का. ओके, आप A3 साइज लो. आप फोटोशॉप पे उसी साइज पे वर्क करो. A3 साइज बिकॉज आपको इजीली वो अगर आप प्रिंट कराते हो, इट इज इजीली अवेलेबल टू यू व्हेन यू गेट इट प्रिंटेड आउट. ठीक है. A3 साइज पे आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हो उसको एंड यू कैन मेक इट. ठीक है. सो दिस इज अ फैशन डिजाइन पोर्टफोलियो. ओके. सो द फर्स्ट पेज, लुक एट द फर्स्ट पेज. ये आपका जितना सिंपल होगा उतना अच्छा लगेगा बिकॉज अगर आप इन दी एंड इसको प्रिंट कराते हो, दिस विल बी द फ्रंट page of the portfolio. Okay, like the outside page. So it will be like a book cover for you. ठीक है. आप जितना सिंपल, जितना आप होता है ना कि बहुत बेसिक एंड स्टिल वेरी स्टाइलिश, ठीक है, उस टाइप का पोर्टफोलियो लो. ठीक है. एंड लाइक द फ्रंट पेज शुड बी लाइक. ठीक है. And now you can see that she has given like the information about her and who is she and what is she studying and everything else with a picture. Okay, see how she has done some creativity over here. Okay, this is Riya Lalwani and she has written. You can add your resume into the portfolio only. Make two kind of resume. One is like the normal resume that we have, and the second is like this one. Okay, आपने पोर्टफोलियो लेंथ में ही वो बनाया है. एंड लेट मी जूम एंड शो यू दी. फर्स्ट इज द एजुकेशन. ओके, this is like a portfolio. I think she has worked with a lot of people after that, so this is not a fresher portfolio, but you can see that she has written about the education. And आप अपने स्कूल टाइम से आप अपने एजुकेशन जो भी है अभी तक आप जो पढ़ रहे हो, यू कैन एक्चुअली एड इट हियर. ठीक है. योर स्किल्स, आपकी स्किल्स जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू राइट कि आपको इंडस्ट्री में कितनी आपने स्किल सेट अपना डेवलप करा है. These skills can work on your like 3 years of your studies also in fashion. What kind of things that you have mastered, what kind of things you have learned, you can have a look at these kind of things. ठीक है.
These are the softwares that she learned. Okay, Illustrator, Photoshop, InDesign. I think this is 3D, Clo 3D. ठीक है? And experiences. You can add your internships here. You can also add any kind of work that you did in college. All right. I will share all these links as well with your teacher, and you can, and the position and responsibility. If you want to skip this, you can skip this. You can also add if you have worked in any kind of like fashion show, like if what you have done in the fashion show in your college also. ठीक है? Add those kind of things here. वो भी बहुत ज्यादा मतलब लगता है अच्छा उसमें. ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलम जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, you can add that over here. ठीक है? ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड द बिहांस पोर्टफोलियो. अब ये पोर्टफोलियो आपका कैसे काम करेगा कि बिहांस का आप लिंक ऐड कर सकते हो अपने जो भी आप अपना रेज्यूम बना रहे हो ना, वो आप किसी को ईमेल पे भी भेजते हो. यू कैन ऐड दैट लिंक एंड दैट पर्सन कैन ओपन दी बिहांस विदाउट इवन लॉग इन. तो आपका पूरा का पूरा वो पोर्टफोलियो वहां पे ओपन हो जाएगा. ऑल राइट. नाउ सी द थीम्स. पहले पेज पे in the theme she has like all the information about what kind of theme she has created here. Okay, like उस theme में actually है क्या, what was her like mindset while working on these kind of themes. ठीक है? उस theme में. And this is also called the design philosophy. You can also write it like design information or anything. You can also write the design philosophy. Okay, then about the contents of the theme. ठीक है? Theme और portfolio क्या क्या contents हैं वो she has added. Now see, this is the kind of mood board or like you can say the theme board or inspiration board, anything you can call this. And like see, now this is the fabric and colors. These are the Pantone colors, the shade colors that she chose. And this portfolio is basically like a journal. Like if you have any like have anything to do with the journaling, you can see that a lot of people actually create journals like this. They tear the paper and then write some things and then paste the stamps, and this kind of portfolio she has. So आपका जो भी अपना पर्सनल एक है ना, एक आर्टिस्टिक जो चीज है आपके माइंड में या फिर आप करते हो, you can add those things to your portfolio, and this looks so beautiful. Okay, so here she has added 2 colors and here she's added these kind of colors, and here all the fabrics that she has chosen, and the summer of 2022, and the hand woven linen matka tussar. Okay, this is matka tussar silk. All right, now see the illustrations. Okay, now what she has done here, she has not made any outfit like by hand. What she did, made the illustrations digitally and she added the fabric, the actual fabric here. She has not created anything like fabric rendering and anything. She has created she has only copy pasted the fabric in a way कि आपको यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है. And she has added shades also जिससे आपका वो outfit proper लगे. ठीक है? This is done on Photoshop and that can be easily done by you also. See the outfits. Now this is the photo shoot she did with the outfits. Okay, if you get the photo shoot done, totally up to you. आप वो outfits create कर रहे हो, and आज के time पे वो proper Photoshop ये फोटो शूट भी नहीं कराने पड़ते. आप प्रॉपर नॉर्मल पिक्चर्स भी अगर अपने फोन से क्लिक करते हो ना, एंड यू एड इट इन अ वे, तो वो भी आपका माना जाता है. इट डजंट हैव टू बी अ प्रॉपर फोटो शूट. नाउ सी ऑल दी आउटफिट्स. This is called spec sheet, where the pattern of the outfit will be like the technical, the flat sketches. Also the spec sheet in a way कि she has written everything. आपने कौन सा फैब्रिक चूज किया है, what kind of fabric this is, कौन सा फैब्रिक यहाँ पे चूज किया है, and she has written all the fabrics that she has worked on, and the sample size, the outfit that she has created here. She has written the size also. The sample range, कौन से साइज से आपका शुरू हो सकता है, कौन से साइज तक वो जा सकता है. सी XS to XXL. ठीक है? डिजाइनर्स नेम, डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन. ठीक है?
एंड स्टाइल नंबर इज बेसिकली, स्टाइल नंबर क्या है कि जैसे आप वेबसाइट कोई देखते हो ना, तो वहां पे आपका एक स्टाइल नंबर लिखा होता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड SKU. ऑल राइट. एंड फैब्रिक ट्रिम्स कि कौन कौन से, जैसे फ्यूजिंग यूज की है, फैब्रिक बटन्स यूज किए हैं, टैग्स एंड लेबल्स क्या क्या आपके यूज हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, सी वॉश केयर वॉशेबल है कैसा है, दिस इज कॉल्ड स्पेक शीट. ये स्पेक शीट्स आपकी आगे जाके, जैसे आप एज अ डिजाइनर या फिर आप ये एक्सपोर्ट हाउसेस में आप वर्क करते हो, तो वहां पे भी आपको स्पेक शीट वगैरह बनानी पड़ती है, दैट इज अप टू यू. मैंने ऑनेस्टली नहीं काम किया अभी तक एक्सपोर्ट हाउसेस में, सो आई डोंट नो, बट आई हैव नॉलेज कि हाँ इस टाइप की चीजें बनाई जाती हैं. All right. Point of measurements. She has written all the measurements, how a measurements is taken. ठीक है, that is also a good point. You can add it. कि measurements आपकी कैसे ली जाती हैं. So this kind of size chart or measurement chart you can get it on Google also. ठीक है. Cost sheet. Fabric का cost क्या था, quantity कितने मीटर आई, amount, and then trims, बाकी सब. In the end आपका sample costing क्या पड़ी. That also you have to write. This is cost sheet. Now see the ethnicity in internship project. So this is how you can actually add. अब ये देखो, ये थोड़ा मुगल इंस्पायर्ड है, ठीक है. She has added a lot of Mughal kind of patterns here, ठीक है. Whether it's the architecture, whether it's the fabric, anything that was kind of like that. And you can see. So जरूरी नहीं है कि मुगल में जाके आपको सिर्फ ब्राइडल वेयर ही बनाना है. कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग. आप पैटर्न्स वो ले लो, आप फैब्रिक्स, आप प्रिंट्स वो ले लो, मुगल प्रिंट्स जैसे हो गए, पैटर्न्स हो गए, वो चीज आप ले लोगे, तब भी यू कैन क्रिएट ऑल दीज थिंग्स. सी दिस इज द फ्लैट स्केचेस. These flat sketches you can easily make on like Photoshop. Okay, if you are, I personally work on the Procreate right now, but you can either download a flat sketch croquis and make it on that, and then remove the croquis, and you'll have a flat sketch right like this. Okay. Design process. She has added some pictures from the design process here and how everything worked. Now see the outfits. Okay, again, everything else just like that. So this is how you can make your portfolio versatile. And जरूरी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही आउटफिट्स लेने हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बने आपके. यू कैन क्रिएट अ नॉर्मल वेयर ऑल्सो, ठीक है. एंड उसमें आपके, ताकि आपके प्राइस जो रेंज है वो आपकी नॉर्मल सी रहे, ठीक है, ज्यादा ना हो. इनिशियली इतना ज्यादा नहीं लगाना होता, ठीक है. नाउ सी, this is, I think this is made on Flow 3D. Okay, these are 3D patterns. So I will share all these portfolios with you and see more of them. कुछ मैं आपको इंडियन डिजाइनर्स के दिखा रही हूँ, कुछ विल बी आउटसाइड ऑफ इंडिया. सी आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा दोनों में. See here, this is a little bit of a dark theme. So you can see how the patterns turned out. So इस टाइप के थोड़े से स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स भी यू कैन चूज, स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स भी आप चूज कर सकते हो. बिकॉज इट इज ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप किस टाइप के डिजाइनर आगे जाके बनना चाहते हो. सो आपकी थीम्स उस टाइप की होनी चाहिए. जैसे गौरव गुप्ता, यू हैव सीन गौरव गुप्ता डिजाइन्स आर मोस्टली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है. that person creates so many structure and like work with a lot of fabric and smoking with the outfits. All right, now see how it is different. They have shown the illustration here, all the fabric swatches here,
and the flat sketch is also here. Same with this. Behance पे आपको बहुत सारे पोर्टफोलियोज मिलेंगे, आपको सर्च करना ही नहीं पड़ेगा. Behance इज अ वेबसाइट प्रॉपरली फॉर द डिजाइनर्स, जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो इंस्पिरेशंस भी मिलेंगी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे. बट ट्राई नॉट टू टेक टू मच इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज पोर्टफोलियोज, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो पर्सनल एक टच होगा ना, वो चला जाएगा. सो इंस्पिरेशन लो सिर्फ एक आउटर वे में कि आप कैसे कैसे उसको बना रहे हो. ठीक है, एंड देन यस. ठीक है, बाकी आई विल शेयर ऑल दीज लिंक्स टू यू, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड let me show you some, and I'm showing you some hard covers that you can use for the like the proper portfolio that we are going to make. So आप ये चीजें आपको कैसे मिलेंगी कि आप या तो किसी प्रॉपर जैसे एल्बम्स जो बनाते हैं ना, फोटो स्टूडियोज वाले जो होते हैं, दोज पीपल मेक दी एल्बम्स लाइक दिस. आप वहां से प्रॉपर अपनी जो भी वो इमेजेस हैं, उसका आप पीएचडी वर्जन सारा का सारा उनको एज अ फोल्डर बना के दे दो, एंड टेल देम कि आपको कौन से पेज पे क्या चाहिए, सीक्वेंस वाइज उनको दे दो विद दी फ्रंट पेज मेड, एंड दे कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो लाइक दिस फॉर यू. ठीक है, हैव अ लुक इस टाइप में, या फिर आप कट वर्क में भी करा सकते हो. ठीक है, एंड ये आपको आई थिंक सारा ये कट वर्क कराना पड़ेगा. पैटर्न्स क्रिएट करके आप उनको दोगे तो ये जो है बोर्ड कटिंग वगैरह जैसे होती है, ये प्रॉपर आपकी लेजर कटिंग जिसको बोलते हैं, तो ये लेजर कटिंग से हो जाती है. सो आपको यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु डू दीज थिंग्स. ठीक है, आप इवन लाइक आई थिंक द easiest one will be go to a photo studio and ask them to get it printed for you like this. इस टाइप से you can create a portfolio for you or yourself. ठीक है, all right, I will also share this link where I've searched the portfolio. So आपको यहाँ पे बहुत सारे portfolios भी मिल जाएंगे. All right, any questions? Does anyone have any questions they want to ask? We can have a proper discussion also. Anything that you want to discuss? मैम आपने इतना अच्छा समझाया कि हमको सब समझ में आ गया. ओके, फिलहाल कोई क्वेश्चन प्लानिंग कि आज एक टास्क देते हैं स्टूडेंट्स को. ओके, एंड जैसे नहीं. अभी मैं पूछना चाह रही थी कि लाइक दी स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियोज और दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियोज. मैम मोबाइल फ्रेंडली एप्स बताइए ना जिसमें हम लोग पोर्टफोलियो बना सके मोबाइल में. मोबाइल में देखो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, आप लोग कैनवा ट्राई कर सकते हो. कैनवा में आप
डिफरेंट काइंड ऑफ आपको साइजेस, बट ये है कि आपको कैनवा में फ्री वाला ऑप्शन है, उसमें आपको साइजेस में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फ्री में साइज एक प्रॉपर ही है। आई वुड प्रिफर कि, क्योंकि मैंने 4-5 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया, आई डिड इट इन फोटोशॉप। सो आप कभी भी ये चीज मत सोचो कि हम शॉर्टकट से मोबाइल ऐप के थ्रू उसको बना लें, ठीक है? फिर वो जो डिजाइनर्स होंगे वो भी शॉर्टकट में किसी और को ले लेंगे। सो तो ट्राई करो, एफर्ट्स जितना डाल सकते हो ना उतना डालो, वेदर इट्स मेक इट इन फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनीवेयर। आप हैंडमेड बनाना चाहते हो, हैंडमेड इज ऑल्सो देयर, बट हैंडमेड में ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। आज के टाइम में हैंडमेड विल नॉट बी वर्दी। आप डिजिटल बनाओ, उसको प्रिंट आउट कराओ जिससे आपका स्मार्ट वर्क नजर आए, बिकॉज एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर समवन हु वर्क्स डिजिटली, जिसको एप्लीकेशंस आते हो, वेदर इट्स फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, क्लो 3D, इन डिजाइन, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है ना, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए इन योर रेज्यूमे, वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इन माई कॉलेज एट दैट टाइम, लाइक नॉर्मल जैसे क्लासेस चलती हैं, तो किसी ने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने अलग से फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर का कोर्स, योर टीचर्स आर रियली गुड, सो दे विल बी टीचिंग यू, दे आर टीचिंग यू अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो आई डिड अ प्रॉपर कोर्स जिसमें मैंने फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड इन डिजाइन था नहीं तो आई थिंक इट वॉज सम अदर लाइक सॉफ्टवेयर, ठीक है? सो आई डिड दोज सॉफ्टवेयर, और जिससे क्या हुआ, मेरी कमांड उस सॉफ्टवेयर पे बढ़ी। और किस तरीके से, इन कॉलेज ओनली मैंने 3rd ईयर में एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना शुरू किया, जस्ट बाय सिटिंग विद माई टीचर इन दी कंप्यूटर लैब। मैंने उनको देखा, मैंने उनसे पूछा कि मैम मैं अगर ये चीज करना चाहती हूँ, हाउ शुड आई डू इट? एक्स्ट्रा टाइम, योर टीचर्स आर रेडी टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, जस्ट बिकॉज आप सीखना चाहते हो, तो दे आर एक्चुअली रेडी टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो, बट आपको अपने आप एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, आपका अपना रिसर्च होना बहुत जरूरी है, ठीक है? when I was in my like in 3rd year, when I was working on my portfolio, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठती थी, and I used to sit, and मुझे बैक इश्यूज हो गए थे, still I used to sit and I made my portfolio by sitting at night. I was the first student to submit my portfolio, okay? And I think in last session I also shared like मैंने अपना portfolio show किया था, and I think I shared the link also with the teacher. So that was the portfolio that I worked on. ओके मुझे 3 महीने लगे थे पोर्टफोलियो बनाने में, 1.5 1 month was प्योरली द रिसर्च पार्ट, ठीक है? एंड देन आई क्रिएटेड द इलिस्ट्रेशंस, 2 दिन में एक इलिस्ट्रेशन आई क्रिएटेड। माय टीचर यूज्ड टू टेयर माय शीट्स, जब अगर अच्छा नहीं लगता था, मैं 2-3 दिन में वो इलिस्ट्रेशन बनाती थी, माय टीचर यूज्ड टू टेयर माय शीट्स कि वो अच्छा नहीं बना है, ठीक है? दैट इज नॉट, तो अगर आपकी टीचर स्ट्रिक्ट है फॉर योर पोर्टफोलियो, सो यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि वो ऐसा कर रही है, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो यू वॉन्ट बी एक्सेप्टेड बाय द टॉप डिजाइनर्स, यू वॉन्ट बी इन अ गुड जॉब और इन अ प्रॉपर लाइक इंटर्नशिप एनीवेयर इन नेक्स्ट 1 year, ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड कि एज अ स्टूडेंट आई एम सेइंग दिस, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था एक टाइम पे, आई वॉज लाइक कि मैं नहीं पढ़ूंगी इनसे, बट इन द एंड आई न्यू, आज भी आई एम कनेक्टेड टू माई टीचर and I show every work that I do. She follows me on Instagram. If I make any mistake, she always pointed out, even after 4 years, she pointed out कि विभू इसकी proportions अच्छे नहीं बने हैं, या इसका ये अच्छा नहीं बना है, and everyone on Instagram is like, wow, your work is so good, and my teacher is always criticizing about that thing, but that is how I grow. I grow every day because my teacher is connected with me. So आप जो भी काम कर रहे हो, वेदर इट्स योर पोर्टफोलियो, योर फाइल्स, ऑलवेज बी कनेक्टेड विद योर टीचर इन अ वे कि आप अपनी गलतियां भी अगर उनको बता रहे हो, उनको दिखा रहे हो, शी इज द वन हु इज करेक्टिंग यू, और कोई नहीं करेगा करेक्ट। देर इज नो वन मोर एक्सपीरियंस्ड इन फ्रंट ऑफ यू देन योर टीचर, बिकॉज शी इज गोइंग टू गिव यू ऑल द करेक्शंस। वो करेक्ट करने के लिए देंगी, आपको लगेगा नहीं जरूरत नहीं है, 1 साल बाद अपना पोर्टफोलियो उठाओगे ना, यू विल सी दैट कि मैंने अगर यहाँ करेक्शन कर दी होती तो और अच्छा हो जाता। सो दैट इज हाउ कि और जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो से यहीं तक खत्म हो जाएगा कि आपने कॉलेज में 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, योर पोर्टफोलियो इज डन। जब आप Behance पे पोर्टफोलियो बनाओगे ना, यू विल बी सो कनेक्टेड विद अदर डिजाइनर्स ऑल्सो, आप लोगों का काम देखोगे। मेक अकाउंट ऑन Behance
एंड सी कि आप जब लोगों को फॉलो करोगे, पीपल एक्चुअली अपलोड ऑल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स देयर, वो मेहनत करते हैं एंड देन दे क्रिएट अ प्रोफाइल जहां पे आप वो प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं पर थीम के अकॉर्डिंग। यू कैन ऐड योर पोर्टफोलियो, वेदर यू कैन ऐड इट टोटली एज अ फैशन पोर्टफोलियो, एंड आप बिहेंस में आगे जाके उनको स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, एंड एवरी प्रोजेक्ट दैट यू वर्क इन फ्यूचर यू कैन ऐड इट देयर। बनाने के लिए डू इट ऑन फोटोशॉप। इलिस्ट्रेशंस अगर आप हैंडमेड नहीं बना सकते हो, आई हैव शोन यू द इलिस्ट्रेशंस, बहुत ही बेसिक तरीके से लोगों ने इलिस्ट्रेशन बनाए हैं, फ्लैट स्केच इलिस्ट्रेशन से खड़ा है, and the outfits are changing. She has used one croquis only and she has changed all the outfits as per that. But आपका आउटफिट प्रॉपर दिखना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क, बिकॉज कितनी अच्छी क्रोकी है वो कभी मैटर करेगी ही नहीं, ठीक है। इट मैटर्स इन माई केस बिकॉज माई वर्क इज लाइक दैट, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स को इन चीजों में इंटरेस्ट है, दैट इज वाई आई एम वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। अगर मेरे क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं होगा, I only choose one croquis and then I change the designs. Let me show you some of the designs that I did. Recently, I worked for a designer, a US-based designer, where I worked on the very simple kind of outfits for her. Okay, see this. This is a very basic outfit, but the दुपट्टा, एंड जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो तो आपका वो आउटफिट अच्छा लगेगा। इट इज की छोटी छोटी चीजों से आप एक आउटफिट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पाकिस्तानी डिजाइनर हु इज currently living in US. She has started her collection there, so she wanted me to create some designs for her. So these are some designs that I'm sharing, जो कि अभी I have not shared on my page because she is not allowing me. So these are very basic designs, but so it doesn't matter. और डिजिटली पता है आप इलस्ट्रेशंस बनाओगे ना, आपका एफर्ट कम लगेगा। हैंडमेड में आपको क्रोकी, हर क्रोकी नई बनानी पड़ेगी, हर आउटफिट नया बनाना पड़ेगा। डिजिटल में आप एक क्रोकी बना लो एंड देन यू कैन स्विच दी आउटफिट्स ऑन दैट, आपका टाइम बचेगा। सो लर्न द स्किल्स ऑफ डिजिटल डिजाइनिंग, डिजिटल इलस्ट्रेशंस में अपनी स्किल्स डेवलप करो, ओके, बिकॉज वो आगे काम आएंगी, किसी ना किसी फील्ड में काम आएंगी, चाहे वो एज एन इलस्ट्रेटर आए, ठीक है, चाहे वो एज अ डिजाइनर आए, बट वो अगर होंगी तो आपको एक प्रॉपर, और उससे क्या है कि आप पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट क्लो 3D, आई हैव नॉट लर्नड इट, क्लो 3D मुझे भी अभी सीखना है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट क्लासेस फॉर दैट, बट अपनी स्किल्स को डेवलप करो ताकि आपका क्या है कि आपकी डिमांड बढ़े। अगर आप आज ये सोच के चलोगे कि मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, दैट्स इट, इसके बाद मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं लाइफ टाइम सिर्फ इसी पोर्टफोलियो से जॉब लेते जाएंगे, नहीं होगा ऐसे। आपको हर टाइम अपना नया कलेक्शन, आप जिस भी डिजाइनर के साथ किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि आपको अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड करते जाना है। सिर्फ रेज्यूमे में ऐड नहीं करना, पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है। जब मैं जॉब्स के लिए, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, मेरा एक पोर्टफोलियो था, आई यूज्ड टू ऐड एवरीथिंग दैट आई हैव डन। जब इनिशियली मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, एट दैट टाइम मैंने अपना जो रिज्यूमे था वो मैंने फोटोशॉप में बनाया था। आई डेंट मेक इट ऑन वर्ड, आई मेड इट ऑन फोटोशॉप। मैंने बहुत ही सिंपल डिटेल्स, मैंने बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा देके, आई वांटेड इट टू लुक लाइक अ डिजाइनर्स रेज्यूमे। मैंने बहुत अच्छा बैकग्राउंड, एक मतलब जैसे वाटर कलर वाला जो बैकग्राउंड होता है वैसा बैकग्राउंड दिया, एंड देन आई एडेड सम ऑफ माय इलस्ट्रेशंस ऑन दैट ऑन माय रेज्यूमे, जिससे मेरे रेज्यूमे देखते ही किसी को मेरे पोर्टफोलियो देखने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो आई एडेड दैट, आई एडेड माई इलस्ट्रेशंस, मैंने अपनी जितना स्किल सेट था मैंने सब लिखा, मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखी, वेदर अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड इन कॉलेज, अगर मैंने फैशन मॉडलिंग भी की है कॉलेज में, आई हैव रिटन दैट ऑन माई रेज्यूमे।
इफ आई हैव डन द बैक स्टेज वर्क, अगर मैंने थीम्स की जैसे वो बैकड्रॉप्स डिजाइन की है, मैंने वो भी लिखे हैं. सो राइट एवरीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, बिकॉज इनिशियली जब आप फ्रेशर होते हो ना, आपकी यही सारी चीजें आपका रेज्यूमे क्रिएट करती हैं. अगर आप सिंपली लिख दो कि आई एम अ फ्रेशर, ठीक है, एंड बिकॉज कोई भी डिजाइनर अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहता. वो इंटर्नशिप के लिए भी अगर वो इंटर्न भी रखता है तो वो इंटर्न को एज अ बर्डन नहीं लेना चाहता. वो चाहता है कि उसका इंटर्न इतनी जल्दी समझे उस चीज को कि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े, उसको समझाना ना पड़े. बिकॉज अगर आप किसी को समझा रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ अ जॉब फॉर योर सेल्फ. इफ आई एम कीपिंग यू गाइज एज एन इंटर्न, मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहूंगी. बिकॉज इंटर्न अगर मैंने रखे हैं, दैट मीन्स मैं अपना काम ऑफलोड कर रही हूँ, मैं अपना काम बढ़ा नहीं रही हूँ. ठीक है, दैट इज व्हाट इंटर्नशिप इज. सो कीप दैट इन माइंड कि आपको ऐसा ना हो कि आपको बेबी सेट करना पड़े डिजाइनर को कि व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं. वो इंसान सिखाएगा, बट यू आर एडल्ट्स नाउ, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एज एन एडल्ट हमें उस चीज को कितनी जल्दी समझना है. कोई इंसान एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, एट दैट टाइम दैट पर्सन विल बी लाइक दिस इंटर्न हैज बिकम अ लाइबिलिटी फॉर मी, आई हैव टू रिमूव हिम. बिकॉज ये टाइम ऐसा है दैट, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज नॉट समाज सेवा. ठीक है, दिस इज अ प्रोफेशनल person who is working as a designer, who is working with so many clients. That person will never take an intern who is like behaving as a baby or as a nursery student. So maturity लानी पड़ेगी. So you guys are graduating soon. ठीक है, you guys are making your portfolios, so keep that in mind. I am saying all these things as a student who learned a lot in this industry, and I'm sharing my experiences with you. So डरना नहीं है, बट कीप दिस इन माइंड कि बहुत ज्यादा आपको सुनना भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा सहना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा. ठीक है, सो उस चीज को पूरा रखते हुए आप ये चीज बस सोचो कि आपकी टीचर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं इन चीजों के लिए. सो गिव देम सम क्रेडिट and work on your portfolios. Tomorrow also we are going to work deeply on the portfolio and resume. I will share some resumes also. Okay, and if you guys want, if you guys have the laptops with you right now, we can also, and if you want, you can just like give me, ma'am, you can give me 1 or 2 names. Okay, I can just show you how to create the portfolio like resume in the Word or the Photoshop, like how I used to create it. I will show a sample resume for you. Any name, any person who wants to create it, okay, you can give me any name and I can create that thing, okay, in front of the students. All right. So and in I think portfolio के लिए that will be because 1 घंटे में नहीं होगा, because that's the kind of thing. So portfolio के लिए मैंने आपको information दे दी है. I have given a task to all the students कि आपको themes ढूंढ के लानी है. आप लो, चाहे आप एक रफ थीम ढूंढ के लाओ, आप प्रॉपर वो थीम ना रखो, बट यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 themes एंड वी विल डिस्कस एवरी ईच ऑफ द थीम. एंड उसमें मैं आपको आइडियाज दूंगी उस थीम्स के लिए कि आप क्या क्या आइडियाज उसमें चूज कर सकते हो, एंड उसमें आपको रिसर्च किस तरीके से उस करनी है. ठीक है मैम, तो आप मुझे कल 11 o'clock तक इनके आप मुझे थीम्स भेज देना. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दोस थीम्स इन द क्लास, एंड कल एक सैम्पल रेज्यूमे भी बनाएंगे. All right. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hope you guys are enjoying the session. We are going to meet again. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye, ma'am.